Okay, welcome back to Navkar. Section 26, next discussion, co-ownership. कल तक का डिस्कशन था सेक्शन 25A तक का. Now we'll move on to the next provision, section 26, co-ownership. Co-ownership means more than one owner of a property. That is joint owner of a property. So two or more person jointly owns a property. Fine. Co-ownership के अंदर क्या होगा? हेडिंग लगा दिया. फाइन. Co-ownership प्रॉपर्टी समझने के लिए लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल. से यू आर ओनर ऑफ टू प्रॉपर्टीज. jointly owns the property. For example, father थे मिस्टर एक्स, उनके 3 सन है मिस्टर ए, बी एंड सी. यू आर वन ऑफ द सन. सन 3, प्रॉपर्टी 2. बहुत नाइंसाफी. सो व्हाट फादर हैज डन, फादर इज वेरी स्मार्ट. दोनों प्रॉपर्टी तीनों के जॉइंट नाम में कर दी. सो ऑल दिस 3 जॉइंटली ओन्स दिस प्रॉपर्टी 1 and 2. बोथ जॉइंटली ओन्स द प्रॉपर्टी. सो बोथ आर दी, मतलब ऑल द 3 आर जॉइंट ओनर. जॉइंट ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी, तीनों के पास सब कुछ है, तो ऑब्वियसली भाईचारा अच्छा है. भाईचारा अच्छा है तो सब लोग एक ही घर में रहते हैं. एंड द रिमेनिंग प्रॉपर्टी इज लेट आउट. दूसरी प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी, उसको भाड़े पे दे दी. सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की इनकम तो नील. लेट आउट हाउस इनकम, हाउ टू कैलकुलेट? स्टेप 1, 2, 3, GAV, म्यूनिसिपल टैक्स, NAV, 30%, इंटरेस्ट ऑन लोन, सब डिडक्शन कर लिया. आफ्टर दैट से इनकम इज ₹6 lakhs. करेक्ट. सो टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 6 lakhs. नाउ द क्वेश्चन इज, दिस 6 lakh इज इनकम ऑफ, किसकी इनकम है? इज इट ऑफ A और B और C? So combined. Combined income means person, वो 7 लोग. Which person? Individual? No sir, association of person. So this income is of basically income of association of person. If it is income of association of person, taxability क्या रहेगी? तो अप टू 250 नील, बेसिक एग्जेम्पशन, सिमिलर स्लैब कैलकुलेशन, और छोटा बड़ा टैक्स भरना पड़ेगा. फाइन. बट द क्रक्स, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नाउ, इफ द शेयर ऑफ इंडिविजुअल को ओनर ए बी सी, इफ their share is defined and ascertainable, say for example 1:1:1. If the share of individual co-owner is defined and ascertainable, then the income from house property, this income is not the income of association of person. ये income association of person का नहीं माना जाएगा. Then the income to be distributed between co-owners A, B and C in their respective share, that is 1:1:1. Means it is individual income of Mr. A 2 lakh, Mr. B 2 lakh, Mr. C 2 lakh, and then it is taxable as individual income in their individual assessment. So ultimately tax liability will be minimized. In this case, if they are not having any other income, it is 0. Right? So co-ownership का सबसे बड़ा benefit, the first benefit, if the share of individual co-owner is defined, very well defined and ascertainable, then the income will be distributed between co-owners and
then it will be taxable as individual income, not as association of person. अब इसके लिए करना क्या है? तो पहले तो जो इनकम है उसका कैलकुलेशन कैसे करना है, तो स्टेप 1 2 3 नॉर्मल कैलकुलेशन जैसे करते हैं वैसे ही करना है. अराइव एट अ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ ऑल, once you find the taxable income, that taxable income to be distributed between co-owners, and then it is taxable as their individual income and not as association of person. So first thing, co-ownership. First important provision, if the share is defined and ascertainable, the income will be distributed and it will be taxable as individual income, not as association of person. But if the share is not defined, शेयर ही डिफाइंड नहीं है, पता ही ना चले कि किसका शेयर कितना है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन भी पॉसिबल नहीं होगा. अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं होगा तो फिर ये इनकम 6 लाख हो जाएगी इनकम ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन और अच्छा खासा टैक्स भरना पड़ेगा. सो एडवाइजेबल शेयर डिफाइंड होना चाहिए, ना हो तो नौकर में क्लासरूम में मिलना, उसका प्लानिंग बताऊंगा, नॉट इवेजन, उसका प्लानिंग बताऊंगा. अभी नहीं, बाद में. अगर शेयर डिफाइंड ना हो तो क्या करना चाहिए सर? अभी नहीं यार, पब्लिक है, क्लासरूम में मिलो, प्राइवेट. करेक्ट? ओके. सो फर्स्ट प्रोविजन, इफ द शेयर ऑफ इंडिविजुअल को ओनर is defined and ascertainable, then income will be distributed between co-owners in their respective share, and then it is taxable as individual income, not as association of person. Correct? This is the first provision. ये एक एग्जाम्पल से हमने समझा है. दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं to understand the second provision of co-ownership. Let us remove this. वही फादर मिस्टर एक्स, वही 3 सन मिस्टर ए, बी एंड सी. फादर ओनर ऑफ 4 प्रॉपर्टीज. आप जैसे रईस इंसान 4 प्रॉपर्टी के मालिक है. नाउ व्हाट टू डू? क्या आ रहा है दिमाग में, क्या करना चाहिए फादर को, बीइंग अ स्मार्ट फादर, यू नो? ओह वाओ, यू नो, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव सम एडवाइस फ्रॉम फ्रेंड्स. फ्रेंड्स के पास से एडवाइस तो लेनी ही चाहिए, कम से कम ये तो पता चले कि क्या नहीं करना है. जो आप लोगों ने सोचा वो नहीं करना है. आपने ऐसा सोचा कि तीनों के नाम पे एक एक प्रॉपर्टी कर दे, 4th प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स खुद के पास रखे, फिर गुजर जाए तो कुछ वगैरह 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 वगैरह, वो डीम डोनर वगैरह. नो 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 नो, ऐसा नहीं करना है. फादर इज वेरी स्मार्ट, ऐसा कर ही नहीं सकते. रीजन, सारे प्रॉपर्टी की साइज अलग है. ये जो लास्ट वाला प्रॉपर्टी है ये 200 स्क्वायर यार्ड का है, बाकी अलग अलग प्रॉपर्टी 150, 160, 180 स्क्वायर यार्ड वाला है. अगर ये लास्ट प्रॉपर्टी मिस्टर ए को दे दिया तो बी और सी क्या बोलेंगे? बड़े को बढ़ा दिया. नहीं करना ऐसा. फादर इज वेरी स्मार्ट. व्हाट फादर हैज डन? अगेन, all 4 properties in the joint name of Mr. A, B and C. चारों प्रॉपर्टी जॉइंट नेम में कर दी. So who is the owner of this property? ABC combined. Who is the owner of this property? ABC combined. Who is the owner of this property? ABC combined. इसका ओनर कौन? तीनों combined. करेक्ट? फिर से सबके पास सब कुछ है, तीनों भाइयों के पास चारों प्रॉपर्टी तीनों के जॉइंट नाम पे है. सो भाईचारा अच्छा है. भाईचारा अच्छा है तो सब लोग एक ही घर में साथ में रहते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड. बाकी 3 प्रॉपर्टी ऐसे ही खाली पड़ी है. खाली पड़ी होगी तो प्रोविजन क्या था? प्रोविजन ऐसा था कि मैक्सिमम 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकते हैं, बाकी दोनों डिम लेट आउट करना पड़ेगा. ऐसा कुछ प्रोविजन हमने सीखा है. करेक्ट है. बट
यहां पे को ओनरशिप का एक दूसरा बिगेस्ट बेनिफिट आ रहा है। बिगेस्ट बेनिफिट क्या? इफ द शेयर ऑफ इंडिविजुअल को ओनर इज डेफिनेट एंड एसर्टेनेबल, if the share is defined and ascertainable, each co-owner entitled for one self-occupied property other than the self-occupied property, now it is two now, because एक का दो, correct? So each co-owner entitled for 1 + 1 2 self-occupied properties. दैट इज को ओनरशिप में से एक सेल्फ ऑक्यूपाइड, उसका खुद का दूसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकता है, दो सेल्फ ऑक्यूपाइड तो वैसे भी रख सकते हैं। इन दैट केस व्हाट विल हैपन? दिस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, दिस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, दिस कैन आल्सो बी सेड टू बी सेल्फ ऑक्यूपाइड। और अगर एबीसी के पास खुद का दूसरा कोई घर है तो ये फोर्थ वाला प्रॉपर्टी डिम लेट आउट रहेगा। लेकिन मान लो उनके पास दूसरा कोई घर नहीं है तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी भी अज्यूम टू बी सेल्फ ऑक्यूपाइड, बिकॉज अब तो एक का दो है, two self-occupied can be kept, correct? So if the share of individual co-owner is defined and ascertainable, share defined होना जरूरी है। share defined होगा तो individual co-owner मतलब कि हर co-owner के लिए एक self occupied, मतलब अब से दो self occupied रखने का, confessional competition करने का एक चांस है। ओके, बट इन सारे केस के अंदर शेयर डिफाइंड होना जरूरी है। इफ शेयर इज डिफाइंड देन ओनली टू सेल्फ ऑक्यूपाइड मैक्सिमम, नाउ टू सेल्फ ऑक्यूपाइड कैन बी केप्ट, करेक्ट? सो शेयर डिफाइंड हो तो इंडिविजुअली असेसमेंट होगा और इंडिविजुअली दो दो सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकते हैं। नाउ if each co-owner is entitled for self-occupied, share defined हो तो की बात है। if the share is defined, अगर each co-owner is entitled for one, now two self-occupied, अगर हर co-owner दो self-occupied रख सकता है तो each co-owner, ध्यान से सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, each co-owner can claim interest on loan deduction for maximum rupees 2 lakh. Each co-owner can claim deduction for rupees 2 lakh individually for self-occupied house. इसका मतलब, चलो एक टैक्स प्लानिंग बता देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिडिल क्लास आदमी मेरे जैसा है, उसको कोई घर खरीदना है तो वाइफ के साथ को ओनरशिप में खरीदे। सर आपने वाइफ तो मना किया था एक बार, डीम्ड तो तब होता है जब वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे। वी आर नॉट ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी, वी आर परचेजिंग द प्रॉपर्टी इन द जॉइंट नेम, हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग। ईएमआई का बर्डन है, मान लो 50 लाख का प्रॉपर्टी है, 40 लाख का लोन है, 4 लाख रुपया इंटरेस्ट है। इफ इट इज अ को ओनरशिप प्रॉपर्टी, जॉइंट नाम पे प्रॉपर्टी होगी, दोनों जन इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, माइंड वेल, तो फायदा क्या होगा? तो हस्बैंड कैन क्लेम 2 लाख रुपीज का एग्जेम्पशन, वाइफ कैन ऑल्सो क्लेम 2 लाख रुपीज का एग्जेम्पशन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। सो दोनों जन 2-2 लाख का अलग अलग डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, पूरे 4 लाख का डिडक्शन हो जाएगा अगर वो प्रॉपर्टी एक ही नाम पे ली होती। यू नो, एडजस्टमेंट ऐसा कुछ किया हो कि हस्बैंड की सैलरी में से हम ईएमआई भरेंगे, वाइफ की सैलरी में से घर चलाएंगे और वाइस वर्सा। बैड टैक्स प्लानिंग, मेक इट अ गुड टैक्स प्लानिंग। को ओनरशिप में खरीदो, फायदा आधे इंस्टॉलमेंट हस्बैंड से, आधे इंस्टॉलमेंट वाइफ में से। फायदा हस्बैंड, शेयर इज डिफाइंड, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, एनएवी नील, इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन 2 लाख। वाइफ, शेयर इज डिफाइंड, एनएवी नील, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्शन मैक्सिमम रुपीज 2 लाख। दोनों जन 2-2 लाख का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सो शेयर डिफाइन करो,
प्रॉपर्टी जॉइंट नाम पे परचेस करो, इंटरेस्ट का बेनिफिट 2 lakhs ईच. करेक्ट. So now let us quickly run through this section 26 co-ownership. सिंपल सा कंसेप्ट समझा दिया. 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर बताया मैंने. नंबर 1, if share is defined, individual income, and number 2, each co-owner is entitled to have maximum 2 self-occupied, including उसका एक, इसमें से एक हो सकता है. Fine. Now let us take the provision. Co-ownership. नौकार स्पाइरल ओपन, हाथ में पेंसिल, इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन करते जाएंगे. First point, if 2 or more person jointly owns a property and if the share are defined and ascertainable, definite and ascertainable, then the income from such property cannot be taxed as income of association of person. Cannot be association of person. मतलब शेयर डिफाइंड होगा तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन का इनकम नहीं माना जाएगा. इट इज कंसिडर्ड एज देयर इंडिविजुअल इनकम. सेकेंड पॉइंट, द शेयर इनकम ऑफ ईच सच को-ओनर शुड बी डिटरमाइंड एंड इंक्लूडेड इन द इंडिविजुअल असेसमेंट. इंडिविजुअल असेसमेंट. ईच को-ओनर is entitled for the confessional competition. Confessional competition, you have to select any 2 house relating to 2 self-occupied properties. 2 self-occupied कैसे? तो एक खुद का अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो को ओनरशिप प्रॉपर्टी में से दूसरा एक. अगर खुद का कोई नहीं है तो को ओनरशिप प्रॉपर्टी में से 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड भी हो सकते हैं. करेक्ट. विथ रेफरेंस टू हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी अंडर हिज ऑक्यूपेशन. करेक्ट. इंपॉर्टेंट वर्ड जल्दी से अंडरलाइन करो, फिर हम लोग सी पॉइंट के ऊपर जाते हैं. मेक इट फास्ट. Okay. Point C. It's a combination of first and second point rather. Property is owned by 2 or more person whose share are defined and ascertainable. Share of each such person in the income from property is included in the respective total income under section 22. Now important. Even if the co-owner are also receiving charges from lessee for air conditioning facility and taxable as income from other sources. Okay. Now what is a simple understanding of this? If you are charging rent for house property, it is your house property income, distribute between co-owners. You are also charging income for, that is for air conditioning facility, rent charge किया है. It is income from other sources. Again taxable income find करो, distribute between the co-owners, and then it is taxable as individual income, not as association of person. So house property की income house property के हेड में कैलकुलेट करो, पूरी इनकम कैलकुलेट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दो. एसी का रेंट जो है उसको अदर सोर्सेज में कैलकुलेट करो, पूरी इनकम कैलकुलेट करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो. करेक्ट. इंपॉर्टेंट वर्ड जल्दी से अंडरलाइन कर लो फास्ट. नाउ वी विल टेक सम इंपॉर्टेंट केसेस. We had discussed section 22 basis of chargeability, जिसके अंदर 2-3 इंपॉर्टेंट केस स्टडीज मैंने बताए थे. एक ऐसा बताया था कि स्टाफ क्वार्टर जैसा कुछ हो तो उसका रेंट है. ऑडिटोरियम वाला एक एग्जांपल दिया था, फर्नीचर सेपरेबल इनसेपरेबल. फिर अगर किसी का बिजनेस हो प्रॉपर्टी परचेस करके लेट आउट करने का, वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के साथ हमने डिस्कस किया था. फ्यू इंपॉर्टेंट केस स्टडीज वी आर गोइंग टू डिस्कस. अगेन रेफर टू योर नौकार स्पाइरल ओनली. इंपॉर्टेंट केस स्टडीज के ऊपर आ जाओ पहले जल्दी से. वी शैल क्विकली रन थ्रू दिस. सेक्शन 22 वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल. उसी के बेस पे थोड़े इंपॉर्टेंट केसेस. हाउस प्रॉपर्टी इन अ फॉरेन कंट्री. फॉरेन कंट्री में आपका प्रॉपर्टी है, रईस इंसान हो, बहुत जगह पे आपका प्रॉपर्टी है. मुंबई में मन्नत है, दुबई में जन्नत वन है,
अबू धाबी में जन्नत 2 है, 3 प्रॉपर्टी है। फिर आप सरकार को बोलो 4 महीना मुंबई, 4 महीना दुबई, 4 महीना अबू धाबी, ऑल प्रॉपर्टीज आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, NAV रुपीज नील, चलेगा? नहीं चलेगा। यू सिलेक्ट एनी 2 प्रॉपर्टीज एज सेल्फ ऑक्यूपाइड विथ NAV रुपीज नील, द थर्ड प्रॉपर्टी इज अज्यूम टू बी लेट आउट, नोशनल इनकम टैक्सेबल। दुनिया के किसी भी कोने में घर हो, दुनिया के किसी भी कोने में घर हो, एज इफ इट इज इन इंडिया, एज इफ इट इज इन इंडिया, you select any 2 properties as self-occupied and the third property assumed to be let out, third, fourth, fifth जितनी भी है वो सारी assumed to be let out. So if you have property in foreign country, it will have the same treatment rather as it is in India and it is taxable. Notional income will be taxable. 2 self-occupied को छोड़ के बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है आपकी इंडिया में, फॉरेन में, सब कुछ इंडिया में ही है ऐसा अज्यूम करो। फॉरेन की लोकल अथॉरिटी के हिसाब से उसका वैल्यूएशन निकाल लो, कंपेयर कर लो। यू सिलेक्ट एनी 1 प्रॉपर्टी और 2 प्रॉपर्टीज नाउ एज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड द अदर्स विल बी अज्यूम टू बी लेट आउट। बट क्रक्स, बट ये सब कब करना पड़ेगा? कब करना पड़ेगा? जब आपका रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तब। इफ योर स्टेटस इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, तो फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं था। सो ये सब कब देखना है? जब आपका स्टेटस रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो। इफ यू आर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, तो ये नहीं देखना है। लेकिन हाँ देखना है, देखना है इफ इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इफ इट इज रिसीव्ड इन इंडिया इट इज टैक्सेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। मतलब इफ योर स्टेटस इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, तो फॉरेन इनकम तो वैसे टैक्सेबल नहीं होगा। अगर इंडिया में रिसीव किया तो वापस वो टैक्स परव्यू में आएगा। करेक्ट? हाथ में पेंसिल, इंपॉर्टेंट वर्ड्स। रेसिडेंट SSC is taxable under section 22 in respect of annual value of property situated in a foreign country. Resident SSC, here resident means resident and ordinary resident. Okay. A resident but not ordinary resident or non-resident is however chargeable under section 22 in respect of income of a house property situated abroad, provided resident but not ordinary resident, non-resident, provided income received in India, तो ही इंडिया में टैक्सेबल, अदरवाइज इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। If the tax incidence is attract under section 22 in respect of the house property situated abroad, annual value will be computed. अगर आपका टैक्सेबिलिटी आता है, मतलब कि if you are resident and ordinary resident, या तो RBNR and NR but income received in India, अगर टैक्सेबिलिटी सेक्शन 22 में कवर होगा, अगर उसमें फॉल होगा, तो कैलकुलेशन एनुअल वैल्यू का कैसे करेंगे? एनुअल वैल्यू विल बी कंप्यूटेड एज इफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, एज इफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, मतलब कि इंडिया में ही है ऐसा मान के सिलेक्ट एनी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड, अदर डिम लेट आउट, डिम लेट आउट नहीं। अगर एक्चुअल लेट आउट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर एक्चुअल लेट आउट नहीं है तो फिर डिम लेट आउट अज्यूम करके नोशनल इनकम पे टैक्स भरना पड़ेगा। दैट इज अ स्टोरी फॉर फॉरेन कंट्री प्रॉपर्टी। करेक्ट? इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन हो गए, साथ में पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्प्यूटेड ओनरशिप। डिस्प्यूटेड ओनरशिप मतलब टाइटल क्लियर नहीं है, तारीख पे तारीख केस चल रहा है, केस चल रहा होगा तो उस प्रॉपर्टी की कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी सेक्शन 22 के अंदर, ऐसा नहीं होगा। ऐसा हम पहले डिस्कस कर चुके थे होल्डर के केस में। अगेन इनकम टैक्स ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर विल डिसाइड कि इस प्रॉपर्टी का एक्चुअल बेनिफिट कौन ले रहा है, हु इज एंजॉइंग द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, हु इज एंजॉइंग द फ्रूट्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी। फ्रूट्स मतलब खाने वाला फ्रूट्स नहीं, रेंट वाला फ्रूट्स। करेक्ट? ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनर विल बी डिसाइडेड and taxability will be
एज सच जो डीम्ड ओनर हमने डिस्कस किया था उसके जैसा. सो इफ इट इज अ केस ऑफ डिस्प्यूटेड ओनरशिप, टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज अंडर डिस्प्यूट इन कोर्ट ऑफ लॉ. The decision about who is the owner rests with the assessing officer, income tax department. Assessing officer we are talking about. Mere existence of dispute as a of title, मतलब कि टाइटल पे डिस्प्यूट चल रहा है, that doesn't mean कि टैक्सेबिलिटी नहीं आएगा. Okay, cannot hold up the assessment even if the suit has been filed. मतलब कि केस चलता हो तो भी. Generally, person who is in receipt of income, who is in receipt of income, or person who enjoys the possession, जिसको रिसिप्ट मिल रहा हो, इनकम मिल रहा हो, रेंट मिल रहा हो, या तो जिसके पास प्रॉपर्टी का पोजेशन हो, असेसिंग ऑफिसर विल डिसाइड, केस टू केस बेसिस इट विल डिफर. ओके, दो हिज क्लेम इज डिस्प्यूटेड, ओनर माना जाएगा, दो हिज क्लेम इज डिस्प्यूटेड. करेक्ट. एसेसेबल अंडर सेक्शन 22 ऑब्वियसली हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल होगा. करेक्ट होगा. इंपॉर्टेंट वर्ड्स. नेक्स्ट केस पे चले जाए. नेक्स्ट वन, दैट इज ऑल्सो वी हैव डिस्कस अर्लियर, प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड. स्टॉक इन ट्रेड प्रॉपर्टी होगा तो क्या होगा? जिसका प्रॉपर्टी बना के बेचने का काम है, या तो इन्वेस्ट करके फिर बेचने का काम है, या तो परचेस करके बेचने का काम है. इन बिटवीन द पीरियड जब तक वो सेल नहीं हो रहा है, नोशनल इनकम टैक्सेबिलिटी था जिसके अंदर 2 साल वाला लिमिट था. याद आ गया सब कुछ. सेक्शन 23 सब सेक्शन 5 में भी हमने डिस्कस कर लिया है वो सब. तो वेल लेट अस क्विकली रन थ्रू दिस. इंपॉर्टेंट वर्ड्स ही सिर्फ अंडरलाइन करने बाकी है. वी हैव अ स्पेसिफिक हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. यस. एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ब्रॉट टू टैक्स अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम. अगर अपने पास एक स्पेसिफिक हेड ऑफ इनकम हाउस प्रॉपर्टी है तो फिर उसको बिजनेस प्रोफेशन या अदर सोर्स में क्यों लेके जाना? कब? इट रिमेन्स सो इवन इफ प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड. assessee engage in the business of letting out of property. business of letting out of property के अंदर remember 2016 Supreme Court judgment, subject to that judgment बिजनेस इनकम भी मान सकते थे. ऐसी कुछ हमने डिस्कशन कर ली थी डिटेल में. करेक्ट. assessee इज अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड फॉर पर्पस ऑफ ओनिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ओनली. सिर्फ ओन करने के लिए ही कंपनी बनाया हो तो. NAV would be in annual value will be rupees nil for a period of 2 years. कब से 2 years था? From the end of financial year in which the completion certificate is received. Certificate of completion is received from the appropriate authority. Fine. सब्जेक्ट टू कंडीशन था, प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं होना चाहिए या उसमें से दूसरा कोई बेनिफिट नहीं होना चाहिए. करेक्ट. ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, अंडरलाइन कर लो, बाद में जाने दो. खराब हो गया. Okay, let us proceed further. Next case is of composite rent. Composite rent का मतलब क्या? Combined rent. You are charging rent for house property as well as furniture or other amenities. Amenities like facilities. Facilities like lift maintenance, security, कुत्ता रखा है, watch and ward वगैरह. Okay. If you are charging rent for property as well as amenities, तो प्रॉपर्टी का रेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एमिनिटीज का रेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. फर्नीचर का रेंट अलग से लेते हो तो प्रॉपर्टी का रेंट हाउस प्रॉपर्टी, फर्नीचर का रेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. स्प्लिट करना पड़ेगा, बाइफरकेट करना पड़ेगा रेंट को. कितना हाउस प्रॉपर्टी का है जो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में जाएगा, हाउ मच इज फॉर फर्नीचर एंड एमिनिटीज, इट विल बी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. बट हाँ, एक चीज याद रखनी साथ में, जो हमने वो ऑडिटोरियम वाला एग्जाम्पल लिया था,
if furniture is inseparable part and parcel of property, that is letting of property not possible without furniture, entire income will be chargeable as a business income or income from other sources. याद आ गया? Yes. Apart from receiving rent for building, some cases owner gets the rent of other asset like furniture, or he charges for different services provided in the building like charges for lift, that is lift maintenance जैसा कुछ, security, air conditioning facility etc. Amounts are recovered known as a composite rent, मतलब कि एक्चुअल रेंट जो है उसके दो पार्ट है, उसके अंदर दो चीजें इंक्लूड है, एक हाउस प्रॉपर्टी का भी रेंट है और साथ में फर्नीचर या फैसिलिटीज का भी रेंट है. इट्स अ कंपोजिट रेंट. ट्रीटमेंट विल बी एज फॉलोज. कंपोजिट रेंट टू बी split up, bifurcate, and some which is attributable to the use of property, some use of property chargeable as house property income, correct, to be assessed in the form of annual value under section 22. Amount which relate to the rendition of services, rendering of services like amenities such as electricity, provision for lift वगैरह वगैरह सब कुछ आ गया उसके अंदर. इट इज ओके. चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड आइदर पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इफ इट इज अ रेगुलर कोर्स ऑफ एक्टिविटी, अदरवाइज इट विल बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. करेक्ट? फाइन. So that is section 22 के important cases. Now we'll take few exempted properties, fully exempted properties. Okay, fully exempted property का मतलब क्या है? तो ये प्रॉपर्टीज जो है वो सेक्शन 22 के परव्यू में ही नहीं आएगी. एक तो हमने देख ली थी, इफ प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन, तो वो सेक्शन 22 में कवर नहीं होगा. बाकी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो सेक्शन 22 में कवर नहीं होगी बिकॉज इट इज प्योरली एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टीज. नाउ विच आर दोज एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टीज? विल टेक वन बाय वन. व्हेन प्रॉपर्टी इनकम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स. फॉलोइंग केसेस. फर्स्ट, इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, फार्म बिल्डिंग. फार्म हाउस मतलब आप जैसे रईस लोगों का जो एक्स्ट्रा घर दूर दराज गांव में बनाया है वो नहीं. फार्म हाउस ओनली इफ इट इज यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस. आपका वीकेंड होम जो है वो नहीं. हाँ, ओके. फार्म हाउस. नेक्स्ट, एनुअल वैल्यू ऑफ वन पैलेस, वन पैलेस ऑफ एक्स रूलर. एक पैलेस का एग्जेम्पशन है. खुश हो गए आप लोग? एक्साइटेड टू परचेज द पैलेस. गलती से भी सोचना मत, इट शुड बी ऑफ एक्स रूलर. मतलब कि आपको जो इनहेरिटेंस में मिला हुआ पैलेस है उसी में एग्जेम्पशन है. पैलेस खरीद के उसका एग्जेम्पशन ले, ऐसा नहीं हो सकता है. ओके. प्रॉपर्टी इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी लाइक म्यूनिसिपालिटी, नगर पालिका, महानगर पालिका, देयर इनकम इज एग्जेम्प्ट. प्रॉपर्टी इनकम ऑफ अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन. कोई अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन जो स्पेसिफिकली साइंटिफिक रिसर्च का काम करता है, अप्रूव करने वाली अथॉरिटी गवर्नमेंट अथॉरिटी होगी. करेक्ट. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब ओनली द रिकग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड हॉस्पिटल्स. करेक्ट. रिकग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड रिकग्नाइज्ड हॉस्पिटल्स, ज्यादातर केस में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. प्रॉपर्टी इनकम ऑफ ट्रेड यूनियन. ट्रेड यूनियन मतलब कि जो यूनियन बनाया होता है सारे ट्रेड एसोसिएशन का, इट इज लाइक जस्ट लाइक अप्रूव्ड एसोसिएशन, उनकी प्रॉपर्टी भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी. एंड हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस. चैरिटेबल पर्पस वाला प्रॉपर्टी जो होगा वो हमेशा एग्जेम्प्ट रहेगा. फॉर एग्जाम्पल कोई मंदिर है तो मंदिर का एक धर्मशाला है, धर्मशाला खाली पड़ा है, खाली पड़ा है तो नोशनल इनकम टैक्सेबल नहीं होगा बिकॉज इट इज आउट ऑफ द परव्यू ऑफ सेक्शन 22, क्योंकि वो एग्जेम्प्ट प्रॉपर्टी है. एंड द लास्ट वन इज फनी, इंटरेस्टिंगली फनी, दैट इज प्रॉपर्टी इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टी की जो प्रॉपर्टी है वो एग्जेम्प्ट है, उसमें से कोई इनकम आएगी तो वो भी एग्जेम्प्ट है. ग्रेट. एंजॉय पॉलिटिकल पार्टी वाला प्रॉपर्टी. करेक्ट. नाउ let us sum up very fast, rapid. As far as the provisions are concerned, house property as a whole हमने डिस्कस कर लिया. We have already discussed
ऑल द प्रोविजंस इन डिटेल, सारे प्रोविजंस को सिंपल लैंग्वेज में भी देख लिया, लीगल लैंग्वेज में भी देख लिया, और इंपॉर्टेंट नोट्स आप लोगों ने लिख भी ली है। आई बिलीव 100% आपने लिखी है, फोटो क्लिक नहीं किए हैं, करेक्ट, ओके। You know, one sentence, golden sentence. When you speak, it should be simple. But when you write, it should be legal. बोलो सिंपल, समझ जाए सामने वाला इंसान। कोई भी लैंग्वेज नो मैटर, इंग्लिश इज नॉट कंपल्सरी, इंग्लिश इज ओनली द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इंग्लिश इज नॉट द फ्लेयर फॉर कम्युनिकेशन, फाइन, ओके। बट वेन यू राइट इट शुड बी लीगल। जब लिखे तब तो अच्छा इंग्लिश टर्मिनोलॉजी, जो इंपॉर्टेंट किए हुए वर्ड्स थे वो अपने आने ही चाहिए, करेक्ट है, फाइन। नाउ पूरा डिस्कशन एक बार एकदम फास्ट याद कर लेते हैं, क्या क्या हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था सेक्शन 22, जिसमें हमने डिस्कस किया था बेसिस ऑफ चार्ज। सेक्शन 22 बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ चार्ज के अंदर क्या डिस्कस किया था, विच इनकम इज टैक्सेबल एज प्रॉपर्टी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी के हेड में क्या टैक्सेबल होगा, जिसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, ओनर, प्रॉपर्टी मतलब कि बिल्डिंग एंड लैंड अपार्टमेंट, एनुअल वैल्यू टैक्सेबल। उसके साथ हमने डिस्कस कर लिया था सेक्शन 27। इन सम केसेस असेसी not the legal owner of the property but assumed to be the owner for the purpose of section 22, मतलब कि चार्जेबिलिटी के लिए उसको ओनर अज्यूम किया जाएगा, ओके। उसके बाद हमने डिस्कस किया सेक्शन 23 कंप्यूटेशन पार्ट, हाउ टू कैलकुलेट द इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसके अंदर हमने 5 मेजर सबसेक्शन किए थे। सबसेक्शन 1 लेट आउट हाउस, जिसके अंदर स्टेप 1 2 3 जीएवी, म्युनिसिपल टैक्स, एनएवी, वैकेंसी, अनरियलाइज रेंट, इतना डिस्कस किया था। सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 के अंदर सेल्फ ऑक्यूपाइड, एनएवी नील। 23 सबसेक्शन 3 वी हैड डिस्कस नॉट सेल्फ ऑक्यूपाइड, जब सेल्फ ऑक्यूपाइड को या तो लेट आउट कर दिया हो या तो उसमें से दूसरा कोई बेनिफिट लिया हो। 23 सबसेक्शन 4 वी हैड डिस्कस मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक का दो। एंड 23 सबसेक्शन 5 वी हैड डिस्कस स्टॉक इन ट्रेड प्रॉपर्टी। देन वी हैड डिस्कस सेक्शन 24, जिसके अंदर हमने सारे डिडक्शंस, बहुत सारे डिडक्शंस जो रिस्ट्रिक्ट हो गए सिर्फ 2 के अंदर, मतलब कि एक 30% ऑफ एनएवी मतलब कि स्टैंडर्ड डिडक्शन, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। इंटरेस्ट ऑन लोन के अंदर भी अच्छा खासा आपने 7 अध्याय के साथ डिस्कशन किया है। देन सेक्शन 25 एक ही 3 लाइन के अंदर एक ही छोटे से सेंटेंस में हमने डिस्कस कर लिया था। हमने समझ लिया था अगर नॉन रेसिडेंट के पास से लोन लिया, इंटरेस्ट पे किया, टीडीएस नहीं किया, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। Then we had discussed section 25A, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट एंड रिकवरी ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट। अनरियलाइज रेंट, अरियर्स ऑफ रेंट दोनों में सेम ट्रीटमेंट है, डबल टैक्स नहीं होना चाहिए, असेसी ओनर हो या ना हो, हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल होगा, जिसमें से 30% नोशनल डिडक्शन मिलेगा। एंड देन वी हैड डिस्कस सेक्शन 26, दैट इज को ओनरशिप। इफ शेयर इज डिफाइंड, ascertainable, individual assessment, not as association of person, and each co-owner confessional competition, maximum 2 self-occupied properties. करेक्ट। साथ में हमने थोड़ा एक्स्ट्रा केसेस डिस्कस कर लिए और एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली। सो दीज आर द थियोरेटिकल कंसेप्चुअल प्रोविजनिंग अंडरस्टैंडिंग। करेक्ट। अब धीरे धीरे हम इसी प्रोविजंस के यूज करके हम जाएंगे प्रैक्टिकल्स के ऊपर। Now before we move on to practical, tell me which are the different classification of property. Property के अलग अलग classification क्या हो सकते हैं? All depends upon the classification of property. अगर classification perfect किया हो property का, then computation becomes easy. But if property is not classified well, तो computation is a hell. You know? Okay. Property का classification बराबर से हुआ होना चाहिए. So what is the classification of property? Let us take some classification. What can be the use of the property? Property का use क्या क्या हो सकता है? एक ही हाउस है अपने पास मान लो, तो उसका use क्या होगा? May be self-occupied, may be let out, may be used for own business. अच्छा, उसके अलावा कोई use हो सकता है क्या?
हाँ सर, कुछ दूसरा हो सकता है। क्या हो सकता है? थोड़ा सेल्फ ऑक्यूपाइड, थोड़ा लेट आउट, परसेंटेज क्लासिफिकेशन। थोड़ा बिजनेस, थोड़ा सेल्फ ऑक्यूपाइड, थोड़ा लेट आउट। पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड, फिर लेट आउट, पहले लेट आउट, फिर वैकेंट, पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड, देन लेट आउट, देन गेट आउट, मतलब वैकेंट। So many permutation combinations can be there, but we will take 8 major classification, 8 main classification लेंगे, और हर classification के लिए we will take one hypothetical example for calculation of NAV। एक hypothetical example लेंगे हर एक classification के लिए, how to compute NAV। Main crucial calculation is net annual value, section 23। Once you are through with net annual value, उसके बाद तो उसी का 30% करना है स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, जो मेजॉरिटी केस में दिया होगा एग्जाम्पल के अंदर। इंटरेस्ट में प्री पोस्ट क्लासिफिकेशन वाला रेयर चांस है, करेक्ट। सो फर्स्टली यू विल कैलकुलेट नेट एनुअल वैल्यू, एंड फॉर नेट एनुअल वैल्यू योर प्रॉपर्टी शुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। बहुत सालों पहले हमने ऐसा भी कुछ डिस्कस किया था, याद आया? 7 जन्म हो गए ये करते करते तो। ओके, सो विल टेक 8 मेन क्लासिफिकेशंस। मेन, अगर ये 8 क्लासिफिकेशन का एनएवी कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन समझ में आ गया तो बाकी सारे कोई भी क्लासिफिकेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मिक्सचर कुछ भी होगा, यू विल बी थ्रू विथ दैट, करेक्ट? ओके, सो मेन 8 क्लासिफिकेशंस विल बी लाइक, फर्स्ट, प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, पूरे साल प्रॉपर्टी लेट आउट। सेकेंड, प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, पूरे साल प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड। थर्ड, प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, पूरे साल खुद के बिजनेस के लिए या तो खुद के प्रोफेशन के लिए प्रॉपर्टी यूज करते हैं। फोर्थ, प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर सम पीरियड, साल में शुरुआत में लेट आउट था, देन रिमेन वैकेंट फॉर द रिमेनिंग पीरियड, बाद में वो वैकेंट हो गया। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर सम पीरियड एंड देन फॉर रिमेनिंग पीरियड इट इज लेट आउट। पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड था, फिर आप कहीं चले गए हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस को लेट आउट कर दिया है। सम पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, सम पोर्शन इज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, पूरे साल थोड़ा पोर्शन परसेंटेज क्लासिफिकेशन वाइज, थोड़ा पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड था, थोड़ा पोर्शन लेट आउट था, पूरे साल के लिए। प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर सम पीरियड, शुरुआत में सेल्फ ऑक्यूपाइड था, देन इट वाज लेट आउट फॉर सम पीरियड, थोड़े टाइम के लिए लेट आउट कर दिया, देन इट रिमेन्ड वैकेंट फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर, बाद में वो वैकेंट हो गया फॉर द रिमेनिंग फ्यू मंथ्स। एंड इफ यू आर ओनर ऑफ मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज, करेक्ट। And we will take one more classification if you are owner of more than 2 self-occupied properties, correct। सबसे पहले ये 8 classification लिख लो as it is, then we will take one hypothetical example for each classification for how to calculate net annual value. Make it fast, writing time 2 minutes. Actually fast.
चलो रेडी। जल्दी 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 जल्दी। ओके अब आगे बढ़ते हैं। आई नो ये याद है तुम लोगों को। ओके, गुड ब्रीदिंग टेक्निक, यू नो, जब भी एकदम थकान जैसा लगे ना, यू डू सम ब्रीदिंग, वेरी गुड ब्रीदिंग टेक्निक। डीप ब्रीदिंग, होल्ड फॉर एटलीस्ट 5 seconds, then breathe out. And if you want to feel relaxed, deep breathing from nose, hold it and then breathe out from your mouth. That is relaxation. Anulom Vilom is always very effective tool for breathing exercise, and even Bhastrika, and with energy, you know, वो आपके अंदर एक नया एनर्जी डाल देगा। इफ यू डू भस्त्रिका विथ एनर्जी, लाइक ब्रीदिंग करके हाथ को ऊपर लेके जाओ, ब्रीथ आउट करते करते नीचे लेके आओ, मुंह से नहीं, सिर्फ नाक से करना। यू विल एंजॉय इट। मिनिमम 10 राउंड उसके करो, एकदम फास्ट फास्ट फास्ट, यू विल एंजॉय। उसके बाद एक अलग लेवल का एनर्जी आ जाएगा। फिर 1-2 घंटे के लिए आपको एनर्जी में कोई टेंशन नहीं। फिर से 1-2 घंटे के बाद वापस ऐसा लगे थोड़े डल जा रहे हैं तो वापस एक छोटा सा राउंड ऐसा कर ले। एंड गुड थिंग इज जैसे अभी अपना गला बराबर साथ नहीं दे रहा है तो ओमकार इज द बेस्ट एक्सरसाइज। 2-3 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करके ओम बोलना भी एक अलग टाइप है। बहुत सारे टाइप से ओम बोल सकते, बट गुड थिंग इज लाइक पहला ब्रीद इन कर लो अंदर अच्छे से, फिर उसको होल्ड करो। होल्ड करने के टाइम पे ओ आएगा और म जो है वो ब्रीद आउट होते होते ऑटोमेटिकली निकलेगा, जिसके लिए एफर्ट नहीं करने हैं। और यहाँ पे अंदर है ना कुछ वाइब्रेशंस आने चाहिए म के टाइम पे, देन यू विल फील रिलैक्स। लाइक यू विल एंजॉय। ऐसा दिन में 10 बार करो, गला अच्छा हो जाएगा, एनर्जी भी रहेगी, एंड यू विल नॉट नेवर फील डिप्रेस और स्ट्रेस और एनीथिंग। वैसे ऐसे कोई वर्ड जिंदगी में होते ही नहीं है, डिप्रेशन और स्ट्रेस, भूल जाना। देयर इज नथिंग लाइक डिप्रेशन। काम से टाइम काम खत्म करते जाओ टाइम के हिसाब से, तो कभी कोई स्ट्रेस जैसा नहीं रहेगा। निहार सर ने बोला है कि इतना आपका सिलेबस हो गया है, तो इतना सिलेबस आपकी तरफ से 100% खत्म हो ही जाना चाहिए, एज इफ कि कल ही इसकी एग्जाम है। अगर हो गया है तो देयर इज नो स्ट्रेस यार, लाइफ इज जस्ट फुल ऑफ एंजॉयमेंट। एंजॉय, जीते जाओ और मेरे साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करते जाओ। हाँ, नाउ वी विल टेक hypothetical example for each and every classification of properties one by one. Correct? Hypothetical example पे जाते हैं।
चलो, वो क्लासिफिकेशन के प्रैक्टिकल के ऊपर तो जाते हैं, लेकिन सोचो कितने बुरे इरादे तुम लोगों के, पापी हो। होमवर्क नहीं किया इसलिए याद भी नहीं करवाने का कि सर वो होमवर्क का आंसर था कुछ 50% का, कुछ बोला था 50% लोन रीपेड 1118, रिमेनिंग 50% 1120, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। होमवर्क किया ही नहीं सर, वो सब सॉल्यूशन पूछेंगे ही क्यों। बट यू नो हमारे गुजराती में बोलते हैं छोरू का छोरू था है, हमें तो देना पड़ेगा आंसर। You are supposed to give the answer. Here is the answer for that additional question. जितने जन ने 2 बार बाइफर्केशन किए थे गलत किया है। वर्ड स्पेसिफिकली हमने यूज किया था फाइनल रीपेमेंट, और फाइनल रीपेमेंट डेट 1120 ही आना चाहिए। जल्दी से सॉल्यूशन आपका चेक करते जाओ। वन 118 तक 50% 100% लोन था 20 lakhs, 1118 के बाद 50% हो गया 10 lakhs। टोटल इंटरेस्ट 8,30,000, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट 1,66,000 एवरी ईयर वाइज इसका डिडक्शन। प्री पीरियड 1 2 3 4 5 ईयर्स, पोस्ट पीरियड 10 lakhs 12% फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में 9 months का हो जाएगा क्योंकि 1120 लोन का पूरा रीपेमेंट हो गया है। उसके बाद पोस्ट कंस्ट्रक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। एंड टोटल डिडक्शन ईयर वाइज 286, 256, 166, 166, 166 ऑल ओवर डन। कितने का करेक्ट आंसर? हो स्ट्रेंज, जिसने किया सबका करेक्ट। Achievement. Fine. Now let us proceed further for additional examples, hypothetical example for different classification of property. Fine. Okay. What was the first classification? Property let out throughout the previous year. Okay. फर्स्ट क्लासिफिकेशन लेते हैं। पूरा क्लासिफिकेशन का हेडिंग लगा के लिखने की जरूरत नहीं है, हम छोटी छोटी प्रॉपर्टी बनाएंगे। सैंड सीमेंट लेके बैठ जाओ फास्ट। मस्त प्रॉपर्टी है ना। इट इज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, मतलब 12 months, पूरे 12 months के लिए लेट आउट। लेट अस टेक द इंफॉर्मेशन इन प्रिसाइज मैनर। Say municipal valuation of the property is 5 lakhs. 5 lakhs. Fair rent of the property is 5,25,000. Standard rent of the property say 4,75,000. Actual rent of the property say 40,000 per month. Municipal tax say 20,000 and it is paid by owner. Fine. So if the information is like this, how to calculate the net annual value? We will take this example today first. NAV कैसे कैलकुलेट करते हैं? याद आया? लेट आउट हाउस स्टेप वाइज जाना था। स्टेप 1, स्टेप 1 क्या था? म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। म्युनिसिपल वैल्यूएशन अपने केस में है 5 lakhs और फेयर रेंट अपने केस में 5,25,000। वी विल टेक फर्स्ट स्टेप विच एवर इज हायर, दैट इज 5,25,000। स्टेप 2, स्टेप 1 की वैल्यू कंपेयर विथ स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। सो 5,25,000 कंपेयर विथ
Standard rent is 4,75,000. Whichever is lower, it comes to 4,75,000. ये जो 4,75,000 आया उसको क्या बोलते थे? गवर्नमेंट डिसाइडेड वैल्यू, उसको बोलते थे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट. करेक्ट. स्टेप 3, वी कंपेयर दिस रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट. रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट मतलब स्टेप 2 का वैल्यू और एक्चुअल रेंट whichever is higher. So 4,75,000 step 2, that is your RER, or actual rent what you are charging 40,000 per month, so it is 4,80,000, whichever is higher 4,80,000. 4,80,000 is what? It is your gross annual value. 4,80,000 is your GAV, gross annual value. Okay, पेन में थोड़ा गड़बड़ है. Okay, from gross annual value that is GAV 4,80,000, we will deduct municipal tax which is paid by owner. Municipal tax paid by owner 20,000 लेस करने के बाद 4,60,000, this is your net annual value, जिसको शॉर्टकट में बोलेंगे NAV. Fine. So this is computation of let out house. अगर पूरे साल हाउस लेट आउट हो तो उसका NAV कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो स्टेप 1, 2, 3 से मिलेगा GAV, उसमें से माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स विच इज पेड बाय ओनर, दैट विल गिव यू NAV, नेट एनुअल वैल्यू. क्लियर? सो दिस वाज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर. करेक्ट है? समझ में आ गया अच्छे से? जल्दी से इसको एज एन एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल की तरह लिख लो फर्स्ट क्लासिफिकेशन का ये पूरा कैलकुलेशन. मेक इट फास्ट, 2 minutes. अरे यार, अभी कोई क्वेश्चन दिमाग में मत लाओ कि अनरियलाइज होगा तो क्या होगा, वैकेंसी होगा तो क्या होगा. वी आर गोइंग टू टेक डिफरेंट क्लासिफिकेशंस एंड देन वी आर गोइंग टू टेक सो मेनी प्रैक्टिकल सम्स. डोंट वरी. ओके, आगे बढ़. ओ, मेक इट फास्ट.
Shall we proceed? ओके दिमाग में क्वेश्चन आ गया, मुझे पता ही था आएगा ही। सर एग्जाम में ऐसे एब्रिविएशंस लिखेंगे तो चलेगा, MVFR वैसे चलेगा, बट एडवाइजेबल की फुल फॉर्म लिखो तो अच्छा है। बाकी अगर टाइम कम पड़ता है या मार्क्स एलोकेशन कम है तो चलेगा। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के अंदर है तो यू कैन राइट समथिंग लाइक दिस, नो प्रॉब्लम विद दैट। चलो बढ़े आगे, सेकंड क्लासिफिकेशन के ऊपर जाते हैं। बाकी क्या अभी खुद गिन लो। सेकंड क्लासिफिकेशन, दूसरा एक प्रॉपर्टी बनाते हैं। रेडी विद द सेंटेंसमेंट? प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, पूरे 12 मंथ्स के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड। Again, I am giving you some information like municipal valuation of the property is say 3 lakhs. Fair rent of the property is say 3,50,000. Standard rent of the property is say not applicable. Why not applicable? क्योंकि आपका प्रॉपर्टी ऐसी कोई लोकेलिटी में नहीं होगा जहाँ पे रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल हो। एक्चुअल रेंट नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो एक्चुअल रेंट तो होगा नहीं। म्यूनिसिपल टैक्स 15,000 पेड बाय ओनर। नाउ हाउ टू कैलकुलेट NAV? कंप्यूटेशन ऑफ NAV इस केस में कैसे होगा? हाउ टू कैलकुलेट नेट एनुअल वैल्यू इफ इट इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस? सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में कैसे कैलकुलेट करेंगे? याद करो, स्टेप 1 2 3 ऐसा कुछ भी नहीं, वो सब लेट आउट में था। इफ इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस NAV इटसेल्फ रुपीज नील, करेक्ट। तो इसमें आंसर क्या आएगा? NAV नील। हाँ, नील लिखेंगे और आपको 4 मार्क मिलेंगे। ऐसा नहीं, इंग्लिश में आंसर लिखना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन लिख लो जल्दी से, लाइक अ क्वेश्चन एग्जाम्पल। राइट, अब इसका आंसर बोल दो, लिखोगे इंग्लिश में? भरोसा ही नहीं, लिखना पड़ेगा। इफ प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट the previous year, its net annual value will be rupees nil under section 23 subsection 2 will be rupees nil under section 23 subsection 2 and no deduction
no deduction will be allowed for municipal tax paid by owner. No deduction for municipal tax paid by owner. If it is a self-occupied house, उसमें कभी कोई डिडक्शन नहीं होगा म्यूनिसिपल टैक्स का, बिकॉज NAV itself रुपीज नील. करेक्ट? लिख लो आंसर जल्दी से. चलो रेडी. थर्ड क्लासिफिकेशन पे चले जाए. Shall we proceed? Third one. What is the third one? Property. फिर से अपना नया प्रॉपर्टी बना दिया है. Use for own business and profession for 12 months. Throughout the previous year, own business and profession में property का use. Municipal valuation of the property is say 8 lakhs. Fair rent of the property is say not applicable. No similar other property near or same locality. Standard rent. It is not a notified area, so not applicable. Actual rent possible नहीं है. You are using property for your own business. Municipal tax 40,000 rupees paid by owner. Correct. How to calculate the net annual value in this case? इसमें NAV जैसा कोई कैलकुलेशन आएगा? स्टेप 1 2 3 सर 8 lakhs. 8 lakhs ऐसा नहीं. If you are using property for own business and profession, it is excluded. एक्सक्लूड करके उसको कहाँ पे कवर करेंगे? PGBP में कवर करेंगे. सो इसका आंसर शॉर्टकट में लिख लेते हैं अच्छे से समझने के लिए. इफ प्रॉपर्टी used for own business and profession, that property is excluded from section 22. Hence, आंसर कुछ ऐसा लिखते हैं. इफ प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन, then that property
is excluded from section 22, hence it is to be covered under the head profits and gains of business or profession, and municipal tax paid by owner will be allowed as deduction from business income. बिजनेस प्रोफेशन में सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस म्यूनिसिपल टैक्स जो पे किया है उसका डिडक्शन मिलेगा, लेकिन वो भी जाएगा कहाँ पे, तो बिजनेस प्रोफेशन के हेड में. अल्टीमेटली प्रॉपर्टी इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम सेक्शन 22 एंड इट इज टू बी कवर्ड अंडर द हेड पीजीबीपी. करेक्ट? लिख लो जल्दी से आंसर शॉर्टकट में, फास्ट, 2 minutes. आई नो कि आपको अंदाज़ा आ चुका है. अगर मैंने पहले ही बोल दिया होता कि आज के लिए बस इतना ही, ये लास्ट इलस्ट्रेशन आज के दिन का लेते हैं, तो लिखने की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती. अब तो अंदाज़ा भी आ गया है कि यही यहाँ पे आज अटकने वाले हैं, सो ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ गई. ग्रेट है, लिखो जल्दी. ओके, सो फोर्थ क्लासिफिकेशन ऑनवर्ड्स नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं. आज के 3 क्लासिफिकेशन किए हमने. लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, ओन बिजनेस प्रोफेशन थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर. करेक्ट है? आज यहाँ पे अटकते हैं, नेक्स्ट टाइम यहाँ से आगे बढ़ेंगे. टिल देन स्टे हेल्दी. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.